Hello, students. Hope you are studying very well during this lockdown period. Students, before starting today's topic, please do have a quick revision of my last lecture regarding oogenesis, because today's topic is totally linked with oogenesis. So you must have a proper understanding of all the development stages from primary follicle to secondary and tertiary follicle, then Graafian follicle, then releasing of ovum, etc. After that only you will be able to understand today's topic, that is menstrual cycle. So students, let's begin. Menstrual cycle means the reproductive cycle in the female primates, for example monkeys, apes and human beings. ह्यूमन फीमेल्स या मंकीज़ या एप्स की जो फीमेल्स हैं उनकी बॉडी में जो रिप्रोडक्टिव साइकिल होता है दैट इज़ कॉल्ड menstrual cycle. The first menstrual cycle begins at puberty, that is during an average age of 12 to 14 years, and this stage when the first menstruation starts is called menarche. So menarche क्या होता है? When first menstruation starts in the human females. Now this menstruation is repeated at an average interval of about 28 to 29 days. ये menstruation जो है ये repeat होता रहता है after about 28 to 29 days, and the cycle of events starting from one menstruation till the next one is called the menstrual cycle. So ये जो events repeatedly every month again and again repeat होते रहते हैं, इसे हम menstrual cycle बोलते हैं. During this cycle, one ovum is released from the ovary of the females during the middle of this cycle by the process of ovulation. So menstrual cycle के 14th या 15th डे के बीच में जो एक ओवम होता है वो ग्रेफिन फॉलिकल से रिलीज़ होता है बाय द प्रोसेस ऑफ ओवुलेशन, जो आपने oogenesis में अच्छे से पढ़ा था. नाउ स्टूडेंट्स, हमने अपने कन्वीनियंस के लिए इस मेंस्ट्रुएशन के साइकिल को 4 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है सो दैट आप इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएँ और लर्न कर पाएँ. सो द मेजर इवेंट्स जो होते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल में हम उनको 4 डिफरेंट स्टेप्स में बांट के स्टडी करेंगे. These events are menstruation, then second is follicular phase, which is also known as proliferative phase. Third is luteal phase, or second name of luteal phase is secretory phase, and the last stage when the next cycle begins is known as ischemic phase. Now students, as you know, the cycle starts with the menstrual phase when the menstrual flow occurs and it continues for 3 to 5 days. सो फर्स्ट फेज़ कौन सा हो गया? मेंस्ट्रुअल फेज़. ये फेज़ कंटिन्यू रहेगा 3 to 5 days. It is different from female to female. So the menstrual flow results due to the breakdown of endometrial lining of the uterus and its blood vessels
which forms the liquid that comes out through vagina. So students, ये menstrual flow कैसे बनता है? ये बनता है जो हमारे एंडोमेट्रियम की लाइनिंग थी, जो यूट्रस के अंदर, एज यू नो कि उसकी जो इनर मोस्ट वॉल है वो है एंडोमेट्रियम, उसकी लाइनिंग जो होती है वो ब्रेक हो जाती है और उसके साथ साथ जो ब्लड वेसल्स हैं वो भी रप्चर हो जाते हैं और वो एक लिक्विड की फॉर्म में, ब्लीडिंग की फॉर्म में वेजाइना से बाहर निकल आते हैं। नो स्टूडेंट्स, आपको पता है कि ओवुलेशन कब हुआ था? इस साइकिल के 14th और 15th डे के बीच में, जब ओवम रिलीज़ हुआ था, और वो ओवरी से रिलीज़ होके कहाँ गया था? फैलोपियन ट्यूब में। सो ये जो मेंस्ट्रुएशन है ये तभी होता है इफ़ द रिलीज्ड ओवम इज़ नॉट फर्टिलाइज्ड। अगर इस ओवम को वही स्पर्म नहीं मिला और उसकी फर्टिलाइजेशन नहीं हुई, तभी मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है। लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन मे बी इंडिकेटिव ऑफ प्रेगनेंसी। सो अगर नॉर्मल जो मेंस्ट्रुअल साइकिल एवरी मंथ रिपीट हो रहा था वो अब रिपीट होना बंद हो गया, तो दिस कैन बी एन इंडिकेशन ऑफ प्रेगनेंसी, बट इट may also occur because of certain other reasons like stress and poor health। कई बारी बॉडी में कुछ ऐसे हार्मोनल चेंजेस आ जाती हैं या फिर पुअर न्यूट्रिशन के कारण, जब फीमेल को न्यूट्रिटिव हेल्थ जो है वो उसकी अच्छी नहीं रहती है, तब भी इस मेंस्ट्रुअल साइकिल में कुछ डिस्टर्ब। Now the second phase of this menstrual cycle, as you know, is known as follicular phase or proliferative phase. This phase begins on the 5th day of cycle. So जैसा कि आपको पता है कि 3 to 5 days तक ये menstruation का flow चलता रहता है और इसके बाद जो 5th डे के बाद न्यू फेज़ स्टार्ट होता है साइकिल का, उसको बोलते हैं फॉलिकुलर फेज़, और ये रहता है अप टू 14th डे ऑफ द साइकिल। ठीक है, तो फॉलिकुलर फेज़ स्टार्ट्स फ्रॉम 5th डे एंड इट लास्ट्स अप टू 14th डे। ऑल राइट, नाउ इस फेज़ में आपने दो बातें याद रखनी हैं। इस फेज़ में क्या होता है, ओवरी में क्या होता है और यूट्रस में क्या होता है। अब ओवरी में जैसे कि आपको पता है कि फॉलिकल्स वर डेवलपिंग, सो प्राइमरी फॉलिकल्स डेवलप इनटू सेकेंडरी, देन टर्शरी, देन दे बिकम मैच्योर फॉलिकल्स, ग्रेफियन फॉलिकल्स। दैट डेवलपमेंट कंप्लीट्स ड्यूरिंग दिस फॉलिकुलर फेज। और इनसाइड द यूट्रस जो एंडोमेट्रियम की जो वॉल थी, जो मेंस्ट्रुअल फ्लो के साथ और अलोंग विद द ब्लड वेसल्स जो वेजाइना से बाहर आ गई थी, इट स्टार्ट्स रीजनरेटिंग। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड प्रोलिफरेशन। प्रोलिफरेशन मीन्स कि जब जो यूट्राइन वाल है वो अपने आप को फिर से रीजनरेट करती है, अपने सेल्स का नंबर को फिर से इंक्रीज़ करती है, फिर से अपने आप की रिपेयरिंग करती है। दैट इज़ कॉल्ड प्रोलिफरेशन। सो दैट्स वाई दिस फेज़ इज़ named as follicular phase because in this phase the follicles get mature, and the second name is given as proliferative phase because that uterine wall, that endometrium wall is regenerating itself. सो बच्चों, आई थिंक डायग्राम को देख के ये आपको दोनों इवेंट्स जो यूट्रस के अंदर और ओवरीज के अंदर साइमल्टेनियसली हो रहे हैं, ये आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। डायग्राम में
डेवलपिंग फॉलिकल्स और मैच्योर फॉलिकल्स भी अच्छे से दिख रहे हैं। और साइड बाय साइड यूट्राइन इवेंट्स को जब आप देखते हो और वहाँ से आपको ये पता चलता है कि कैसे जो एंडोमेट्रियम वॉल है उसके सेल्स जो हैं वो धीरे धीरे इंक्रीज़ हो रहे हैं, वॉल जो है वो धीरे धीरे बढ़ रही है और उस वॉल के अंदर जो ब्लड वेसल्स हैं वो भी अपने आप को प्रोलिफरेट कर रहे हैं, दैट इज़ वो भी अपने आप को इंक्रीज़ कर रहे हैं। नो बच्चों, ये जो सारी चेंजेस ओवरीज में और यूट्रस में, जैसे कि मैंने पहले आपको एक्सप्लेन किया, ये सारी चेंजेस साथ साथ चलती हैं और these all changes are under the control of pituitary hormones and ovarian hormones. Now students, inside our brain there is a gland which is known as hypothalamus. This hypothalamus secretes gonadotropin releasing hormone. ये जो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन हाइपोथैलेमस में से निकला, ये स्टिमुलेट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को, सो दैट जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है वो अपने दो हार्मोन्स को रिलीज़ करे, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है ये ओवरी के अंदर फॉलिकल्स की डेवलपमेंट को कंप्लीट करवाता है और साथ ही साथ फॉलिकल्स के अंदर एक हार्मोन रिलीज़ करवाता है जिसका नाम है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन एक बहुत इम्पॉर्टेंट हार्मोन है फीमेल्स में। एस्ट्रोजन डिसाइड्स द फीमेल सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड every month the menstrual cycle events are also decided by this estrogen. Now second हार्मोन कौन सा बच गया, उसका नाम है luteinizing hormone. Now as you see from the graph, both luteinizing and follicle stimulating hormone attain a peak level in the middle of cycle about 14th day. तो आप देख रहे हो दोनों की जो सिक्रीशन का जो लेवल है वो पीक पे पहुंच गया है अबाउट 14th डे पे। सो रैपिड सिक्रीशन ऑफ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन लीडिंग टू इट्स मैक्सिमम लेवल ड्यूरिंग द मिड साइकिल इज कॉल्ड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन सर्ज। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन सर्ज होता है कि सडनली ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का जो लेवल है वो जो पहले इतना हाई नहीं था वो सडनली अबाउट 14th डे पे उसका लेवल बड़ी ज़्यादा हाई लेवल पे उसकी सिक्रीशन होना शुरू हो जाती है, तो उसको बोलते हैं LH सर्ज। तो इससे क्या होता है, जो ग्रेफिन फॉलिकल है वो रप्चर हो जाता है due to high secretion of luteinizing hormone. So Graafian follicle ruptures or ovum is released by the process of ovulation at 15th day of the cycle. Now students, अब हम बात करेंगे कि ओवुलेशन के बाद यानी 15th डे ऑफ साइकिल के बाद क्या क्या चेंजिंग आती हैं inside the uterus or inside the ovary where the follicle has been ruptured and ovum has been released. So जो remaining part of the follicle after the releasing of ovum बच जाता है, जो follicle के जो बाकी cells बच जाते हैं ग्रेफिन follicle के, उनको वो अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर देते हैं into a new structure which is known as corpus ल्यूटियम। क्या बोलते हैं उसको, कॉर्पस ल्यूटियम। सो मेंस्ट्रुअल साइकिल का ये फेज़ जब कॉर्पस ल्यूटियम बनता है, दिस फेज़ इज़ नोन एज ल्यूटियल फेज़ और ये फेज़ रहता है फ्रॉम 15th डे टू 27th डे ऑफ द साइकिल।
During this phase, the mucosal layers of the uterine wall thicken more and more, and the corpus luteum grows further and attains the maximum size on the 19th day of the cycle. So students, जैसा कि आपको पता है कि जो यूट्राइन वॉल है वो इस फेज़ में, ल्यूटियल फेज़ में ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीजिंगली अपने आप को ग्रो कर रही है, और उसके साथ जो ब्लड वेसल्स हैं दे आल्सो कीप ऑन ग्रोइंग, और जो डेवलपिंग कॉर्पस ल्यूटियम था वो लार्ज अमाउंट ऑफ ए न्यू हार्मोन सिक्रीट करना शुरू कर देता है जिसको बोलते हैं प्रोजेस्टेरॉन. सो प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन कहाँ के हार्मोन हुए? जो ओवरी के अंदर सिक्रीट हुए थे. नाउ दिस प्रोजेस्टेरॉन इज essential फॉर द मेंटेनेंस ऑफ endometrium so that this endometrium can help for the implantation of the fertilized ovum if the pregnancy occurs and all the other related events of the pregnancy. So ये जो प्रोजेस्टेरॉन है ये हेल्प करता है प्रेगनेंसी को मेंटेन करने में इफ़ दैट फीमेल गेट्स प्रेग्नेंट. और कार्पस ल्यूटियम में से स्मॉल अमाउंट ऑफ एस्ट्रोजन भी निकल रहा होता है दैट हेल्प्स द प्रोजेस्टेरॉन टू maintain the uterine wall during the event of pregnancy. So the formation of corpus luteum and the secretion of progesterone from it are controlled by luteinizing hormone of anterior pituitary. आप ग्राफ में भी देख रहे हो कि जैसे जैसे कॉर्पस ल्यूटियम डेवलप हो रहा है वैसे वैसे ही जो प्रोजेस्टेरॉन जो बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में शो हो रहा था वो अचानक से उसकी एक बड़ी सी पीक बन गई है. इसका मतलब ये हुआ कि प्रोजेस्टेरॉन जो है इट इज़ रिलीजिंग इन अ लार्ज अमाउंट. सो इस फेज़ में क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम बना था तो हमने इस फेज़ का नाम रखा था ल्यूटियल फेज़, और कार्पस ल्यूटियम ने सिक्रीट किया था प्रोजेस्टेरॉन, इसलिए इस फेज़ का सेकंड नेम है सिक्रीटरी फेज़, क्योंकि इस फेज़ में प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट होता है फ्रॉम द कॉर्पस ल्यूटियम. ड्यूरिंग प्रेगनेंसी all events of the menstrual cycle stop and there is no menstruation. So pregnancy अगर हो गई और जो zygote है वो implant हो गया with the endometrial wall of the uterus, so all the events of the menstrual cycle now don't take place. In the absence of fertilization, अगर fertilization नहीं होती है, अगर ओवम को स्पर्म नहीं मिलता है, द कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट्स. नो स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता था कि कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन सिक्रीट कर रहा था, और जो प्रोजेस्टेरॉन है उसका काम है यूट्राइन वाल को मेंटेन करके रखना. सो अगर कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट होना शुरू हो गया, टूट के उसके सेल्स डिस्ट्रॉय होना शुरू हो गए, तो इसका मतलब है कि नाउ कॉर्पस ल्यूटियम इज़ नॉट secreting प्रोजेस्टेरॉन. सो all the blood vessels constrict and the endometrial tissue becomes ischemic. That is, it start breaking itself, and this phase is therefore known as ischemic phase. ये phase start होता है on the 28th day in which the first discharge of blood takes place, where all the destroyed cells of endometrial wall and corpus luteum along with the destroyed blood vessels, unfertilized ovum and mucous cells are passed out as discharge from the vagina. So from here
एक और नया साइकिल स्टार्ट हो जाता है विच लास्ट्स फॉर 3 to 5 days and again the level of follicle stimulating hormones start increasing, जैसा कि आप ग्राफ में देख भी रहे हो, क्योंकि यही फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन फिर से न्यू फॉलिकल्स को डेवलप करने में हेल्प करेगा और फिर से एक न्यू मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाता है. सो स्टूडेंट्स, इन ह्यूमन फीमेल्स ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है ये स्टॉप हो जाता है व्हेन द फीमेल अटेन्स the age of about 50 years. This period of female's life when there is no menstrual cycle is known as menopause. So, cyclic menstruation is the indicator of normal reproductive phase. तो ये जो साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन हो रही थी ये इंडिकेट करती है कि जो ये फीमेल है ये रिप्रोडक्टिवली एक्टिव है एंड शी कैन प्रोड्यूस चिल्ड्रन. सो दिस साइकिल एक्सटेंड्स बिटवीन मेनार्के एंड मेनोपाज. मेनार्के से ये साइकिल शुरू हुआ था और मेनोपाज पे ये साइकिल एंड हो जाता है एंड इन बिटवीन these two, menarche and menopause, the female is capable of bearing children. So बच्चों, that was all about menstrual cycle. Study hard और फिर से वही बात रिपीटेडली इस लेक्चर को सुनिए, न्यू टर्म्स को लर्न करिए, ग्राफ और डायग्राम्स को ध्यान से स्टडी करिए. then you will surely be able to learn it easily. Till my next lecture, thank you very much.